Good evening, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So today it's auspicious day of Ganesh Chaturthi. Plus, there is a last day of Paryushan as well. So wish you everyone a very happy Ganesh Chaturthi and पर्यूषण पर्व भी आज लास्ट डे है, तो उस सभी की भी आप सबको शुभकामनाएं जोशी पंचकर्मा क्लिनिक के तरफ से. सो आज टुडे आई एम नॉट लाइव विद द पेशेंट. बेसिकली टुडे आई एम ट्राइंग दैट वी ऑल नो कि on Ganesh Chaturthi we do puja, we apply all sorts of the prasad, then this patra, pushpa, everything. But on Ganesh Chaturthi, especially we apply 21 patra to Ganpati. In Ganesh Puja, there is the importance of, the 21 patras. These are actually medicinal plants, and today I am going to speak about those. I don't think so I will be able to cover all 21 patra and their importance, but I will try with 2 to 3. The medicinal plants which are used during Ganesh Puja. So first of all, I will start with Ganesh Vandana. साष्टांग नमन मासे गौरी पुत्र विनायका भक्तीने स्मरता नित्य आयुर कामार्थ साधती. प्रथम नाव वक्रतुंड, दुसरे एकदंतते, तिसरे कृष्ण पिंगाक्ष, चौथे गजोपत्रते, पाचवे श्री लंबोदर, सहावे विकटनावते, सातवे विघ्नराजेंद्र, आठवे धूम्रवर्णते, नववे श्री भालचंद्र, दहावे श्री विनायक, 11वे गणपती, 12वे श्री गजानन, देवनावे अशी 12, 3 संध्या म्हणे नर, विघ्नभीती नसे त्याला प्रभू तू सर्व सिद्धिस्व, विद्यार्थ्याला मिळे विद्या, धनार्थ्याला मिळे धन, मोक्षार्थ्याला मिळे विगती, जपता गणपती स्तोत्र 6 मासात, हे फळ 1 वर्ष पूर्ण होता, मे सिद्धी न संशय, नारदानी रचलेले झाले संपूर्ण स्तोत्र हे, श्रीधराने मराठीत पठले आणवदले, ओम गम गणपतये नमः. So now we'll start with this, 21 patra and its importance as per Ayurveda. Unfortunately, the people who don't have even basic knowledge of, the medicinal plants and all, they have some, the other related degrees in naturopathy or some, other sort of degrees. Still they try to give advice and people start to use those, their in day-to-day life, and somewhere it is hazardous, so it should be avoided. So first of all, I will start with first patra. So you can see these are 21 patris, you can see here. So this is the Arka Patra. Okay, so what is the importance of Arka Patra? So there are so many books of the medicinal plants. So there is one book, Nigantu Adarsha, then Bharat Vaishajya Ratnavali. So there the Nigantus are specially dedicated for the the importance of medicinal plants, and it need a lot of study, then only you are able to the suggest to the patient. But unfortunately people forward anything on WhatsApp. So first of all, I will start with the Arka Patra. So Arka Patra, there are different types of varga. So Arka Patra comes under the Arkadi varga. So there are different types of Arka. So there are first of all we'll see why it is called as a Arka. Arka means Surya. So सूर्य के जितने नाम हैं उतने इसके भी है. So it is basically actually a very उष्ण in nature. मतलब आग का जो दूध होता है, आकड़े का जो झाड़ होता है, उसमें से मिल्क निकलता है. तो अगर वो मिल्क अगर आपको बॉडी पे कहीं पे भी लग जाएगा, so you will have blisters. So that's why it is called as a Arka Patra. Then Asphodh, because it actually when you touch it, it actually have the blisters. It can create a blisters on your body. So these are different types of Then Mandar is also one of the name of this Arka Patra. So Arka Parna. So there are different sort of the names. देन आग का जो झाड़ है उसको उसकी क्या क्या हम यूज कर सकते हैं.
तो उसमें हम लोग उसका मूल भी यूज कर सकते हैं। जो अर्क पत्र है उसका हम मूल यूज कर सकते हैं, उसके पत्रे यूज कर सकते हैं। मेरे काफी सारे पेशेंट को मैं अर्क पत्र का यूज करने बोलती हूँ। उसके पुष्प भी हम यूज कर सकते हैं और उसका दूध भी यूज कर सकते हैं, बट इट शुड ऑल द थिंग्स शुड बी अंडर मेडिकल सुपरवाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बेसिक कुछ आपने पढ़ लिया और आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली अर्क का जो शूप होता है, छोटा सा झाड़ होता है, छोटा पौधा होता है, और वमन विरेचन में अर्क पत्र, अर्क का स्पेशली दोनों भी वमन विरेचन मतलब जो पंचकर्म है बेसिकली आयुर्वेदा के दो इम्पोर्टेंट, उसमें अर्क का यूज बताया गया है। उसके बाद में अर्श, पाइल्स में भी इसका यूज करना चाहिए। और उसका शमी पत्र जो एक आयुर्वेद में अभी गणपति को हम चढ़ाते हैं, उसके साथ धूपन करना चाहिए अगर है। उसके बाद में व्रण में भी उसका यूज करना चाहिए। डेफिनेटली व्रण में ये सब वनस्पति कैसे यूज करनी चाहिए ये आपको एक मेडिकल सुपरवाइजेशन के अंदर ही करना चाहिए। उरुस्तंभ, उरुस्तंभ ये एक आयुर्वेदा में वर्णित वनस्पति है, डिसीज है उरुस्तंभ, कि जहाँ पे पंचकर्म निषिद्ध बताया गया है। तो पंचकर्म एक ही एक व्याधि है उरुस्तंभ, जिसमें पंचकर्म नहीं बताया गया है। बट उरुस्तंभ क्या है, तो बेसिकली थाई जाम हो जाते हैं पेशेंट के, और जिसमें कोई भी पंचकर्म नहीं करना चाहिए, उसमें अर्क आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ योनि रोग मीन्स गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसमें भी अर्क का बहुत अच्छा यूज है। कान का जो दर्द होता है उसमें भी अर्क का बहुत अच्छा यूज है। उसके बाद में श्वास जो एस्थमा होता है उसमें भी आप अर्क यूज कर सकते हो। और मतलब दांत के जो डिसीजेस होते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन उसको कैसे यूज करना है, जैसे सप्तछद, सप्तछद बोल के एक वनस्पति होती है, उसका अर्क के साथ इसका दूध मिला के आपको यूज करना चाहिए। बाद में प्लीहार रोग, स्प्लीनोमेगली में आपको यूज करना चाहिए। उसके बाद में डिफरेंट टाइप के स्किन डिसीजेस में आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद में और एक डिसीज है जैसे हर्निया, हर्निया में भी बहुत अच्छा यूज होता है इसका। स्लीपर जिसको हम हाथी का पाँव बोलते हैं, एलिफेंटासिस, तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो। उसके वृश्चिक दंश में भी इसका यूज है। तो मैंने इन शॉर्ट अर्क पत्र के बारे में बताया है आपको, अर्कादि वर्ग में ये आता है। तो नेक्स्ट वनस्पति जो आज हम सभी ने भगवान गणेश जी को चढ़ाई है वो है दुर्वा। सो यू कैन सी दिस दुर्वा। दुर्वा के बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे दुर्वा है, और दुर्वा है ये तृण वर्ग में आता है बेसिकली। तो मतलब छोटा सा आप कहीं पे भी जाओ जहाँ पे पानी ज्यादा है वहाँ पे आपको दुर्वा मिल जाएगी। तो जहाँ से नाक से खून आता है वहाँ पे दुर्वा का यूज है, ये हम सबको पता है। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई दुर्वा के बारे में। बट उसके अलावा भी तृण वर्ग में जैसे मैंने बताया कि दुर्वा आती है, और तृण वर्ग में कि जो बाकी जो वनस्पति जैसे यव वगैरह है ये सब भी तृण वर्ग में आता है। तो दुर्वा के भी मतलब दो टाइप्स बताए हुए हैं, नील दुर्वा और श्वेत दुर्वा। और इसके जो मतलब इसके भी शतपर्वा, उसके बाद में रूहा, भार्गवी, गंड दुर्वा, अनंता, ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। और जहाँ पे भी मतलब कौन सा उपयुक्त अंग होना चाहिए, तो जैसे मैंने अर्क के लिए बताया 3-4 उसके जैसे मूल से लगा के सब कुछ है। तो दुर्वा का भी संपूर्ण जो पौधा है ये आप यूज कर सकते हो। अभी घ्राण प्रवृत्ति रुधिरे मतलब जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे आप डेफिनेटली दुर्वा यूज कर सकते हो। विसर्प मतलब एक्चुअली विसर्प में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन डिसीजेस आते हैं यहाँ जहाँ पे भी ब्लिस्टर है, पर बेसिकली दुर्वा का जो उपयुक्तता है वो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल डिसीजेस जैसे हर्पिस जोस्टर है उसमें देख सकते हो। उसके बाद में पैतिक छर्दी में भी मतलब पित्त के वजह से जो उल्टियाँ होती रहती है उसमें भी, लेकिन पित्त की छर्दी में इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, तो तंडुलोदक के साथ करना चाहिए। मतलब चावल का जो पानी होता है, जस्ट पानी ले लो, उसमें थोड़े 2-3 चिमटी चावल डाल दो, आधा घंटा भिगाने दो, और उसके साथ वो जब वो जस्ट चावल है वो थोड़े स्मैश करके वो पानी पी लो, उसको तंडुलोदक बोला जाता है। तो उसमें आप यूज कर सकते हो। शीत पित्त काफी बार बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैश आने लगती है,
मतलब कुछ भी खाओ पियो पता नहीं होता है अपने को, कुछ भी खाया एलर्जी हो गई, पूरा बॉडी सूज जाता है, हाथ पे बड़ी बड़ी गांठें आ जाती है, हम बोलते हैं पित्त उठ गया बॉडी पे, तो उसमें भी इसका यूज होता है। शीत पित्त में हल्दी के साथ उसका यूज करना चाहिए, स्पेशली एक्सटर्नल यूज करना चाहिए, लेप लगाना चाहिए। उसके बाद में रक्त पित्त में मैंने बताया ही आपको। वैसे उसके बाद में मूत्राघात मतलब जिनको यूरिनरी रिलेटेड डिसीजेस है उसमें भी बहुत अच्छा यूज है। चरक, सुश्रुत, उसके बाद में शोढल, चक्रदत्त, भाव प्रकाश, ये सब में मतलब दीज आर द बुक्स मेंशन इन आयुर्वेदा, ये सब में दुर्वा का प्रयोग प्रोणादि वर्ग के अंदर आया है। नाउ द लास्ट ऑलमोस्ट, बिकॉज आई एम already took so much of time, now I'm going to speak about this kevada. This is a scented plant actually, this kevada. ये केवड़ा भी हम, इसका अत्तर भी मार्केट में मिलता है, और उसके बाद में केवड़ा का केतकी वर्ग के अंदर ये आता है। और एक ही प्लांट आपको मिलेगा जो बताया गया है केवड़ा, बाकी मतलब चरक सुश्रुत में भी केवड़ा का यूज नहीं है। ये जो आप देख सकते हो इट इज कॉल्ड एज अ केवड़ा, एंड केतक आदि वर्ग के अंदर इसको वर्णित किया गया है। अभी अगर केवड़ा आप देखने के लिए जाए तो जैसे मैं पनवेल में रहती हूँ, तो पनवेल के आजू बाजू में एक विलेज है, तो वहाँ पे एक उरण के नजदीक विलेज है, वहाँ पे पूरा का पूरा एक पहाड़ ये केवड़े का है, और यहाँ पे ये दिस इज वेरी सेंटेड, बहुत सारे सांप वहाँ पे रहते हैं। अभी इसके जो मेडिसिनल प्लांट्स है, इसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हो, ये छोटे छोटे कांटे हैं आजू बाजू में। सो ये छोटे छोटे कांटे होते हैं, और इसके भी मतलब एक स्त्री वर्ग और पुवर्ग, ऐसे स्त्री और पुरुष ऐसे जातियां इसकी बताई गई है, बट इतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। तो जैसे वैद्य मनोरमा में इसका बताया गया है, तो मूत्र पृष्ठ में जो केतकी का ये स्वरस है, मतलब इसका अगर आप जूस निकाल दोगे तो उसका जो यूज है वो घी के साथ अगर आप देते हो, तो जिनको यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आप यूज कर सकते हो, बट डेफिनेटली यू नीड मेडिकल सुपरवाइजेशन अगर आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। और गुल्म व्याधि है, जो अगेन उरुस्तंभ जैसी एक इम्पॉर्टेंट व्याधि आयुर्वेदा में बताई गई है, तो गुल्म में भी केतकी का बहुत अच्छा यूज है। मैं अपने डे टू डे प्रैक्टिस में भी यूज करती हूँ। केतकी के पूरे पंचांग लेकर उसका क्षार बनाया जाता है, और वो क्षार से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्षार मतलब उसको जला के उसकी जो राख होती है उसका वापस पानी डाल के केतकी का क्षार ये गुल्मों में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी मैं बोलूँगी केतकी क्षार, जैसे भी ये केवड़ा इजीली अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ उसका उपयोग करके देखिए, आपको बहुत सारे उसके रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी सुश्रुत संहिता में भी गुल्म में केतकी क्षार का उपयोग बताया गया है, लेकिन उसमें प्रावरुट ऋतु में ही उसका वर्णन करना चाहिए, ऐसे उसमें बताया गया है। सो आई थिंक सो मैंने केवड़ा के बारे में इनफ आपको बता दिया है। जूम करके मैं आपको ये प्लांट दिखा भी देती हूँ, छोटे छोटे कांटे आप इसके ऊपर साइड में देख सकते हो। तो केवड़े का क्षार आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में और एक वनस्पति है, इसमें आप देख सकते हो, दिस इज अपामार्ग, ठीक है। ये जो अपामार्ग है, दिस इज अपामार्ग, ठीक है। तो अपामार्ग का यूज मैंने कोविड पेशेंट में बहुत ज्यादा किया था। अपामार्ग क्षार मैंने बहुत यूज किया था, जैसे मैंने अभी केवड़े का क्षार बताया है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं गुल्म में, वैसे अपामार्ग क्षार भी मैंने बहुत यूज किया था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, एंड इट इज ऑल एप्रिशिएटेड बाय एवरीवन जिनसे मैंने वो शेयर किया था, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। तो अपामार्ग क्षार, बाकी अपामार्ग ये वनस्पति आपको कहीं पे भी उगी मिलेगी, जैसे रोड साइड में एंड ऑल, बट इसका बहुत अच्छा यूज है, और मैंने आपको बता दी दिस इज अपामार्ग। ये ऑलमोस्ट प्लांट्स मैंने कोशिश की है कि आपके सामने रखूं, दिस इज अपामार्ग। तो ये अपामार्ग का भी मतलब बहुत सारे नाम हैं उसके, अदशल्या, खरमंजरी, मयूरक, सो ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं अपामार्ग के भी। सो अपामार्ग के बारे में अगर मैं इसका एक रसायन यूज भी है, सो इसमें यवक क्षार को मिला के उसका यूज किया जाता है। लोह, गंधक आदि ये जो द्रव्य है ये भी इसमें बहुत अच्छे से मिलते हैं। और इवन
अपने जो वेद है उसमें भी अपामार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है। स्पेशली जब कोई पैंडमिक आता है तो अपामार्ग को श्रेष्ठ वनस्पति बताया गया है। और वर्षा ऋतु में मतलब जैसे बारिश है तो अपामार्ग ही आपको बहुत सारे मिलेंगे। नील पुष्प अपामार्ग यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें नील पुष्प है। सो दिस इज द अपामार्ग। उसके बाद में इसको अधशल्या भी कहते हैं, इसके फल नीचे की ओर होते हैं। सो अभी इसका यूज क्या है, तो शीरो विरेचन में अपामार्ग, जैसे मैंने अर्क बताया वमन विरेचन में यूज होता है, तो शीरो विरेचन में अपामार्ग यूज होता है। अर्श में यूज होता है तंडुलोदक, और इसके साथ हनी के साथ अगर आप लेते हो, तंडुलोदक मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और अगर हनी के साथ आप लेते हो, अगर क्रीमी का प्रॉब्लम है, वर्म्स का प्रॉब्लम है, तो भी आपको यूज कर सकते हो। उसके बाद में कर्णनाथ, कर्ण बादरियो, कान में आवाज आना, कान से कम सुनाई देना, इसमें भी अंडर मेडिकल सुपरविजन आप ये यूज कर सकते हो। बाद में फीवर में इसका डेफिनेटली यूज है। नेत्र रोग में भी अपामार्ग का यूज बताया गया है, लेकिन इसका कैसे यूज करना है, क्योंकि इसमें सैंधव, ताम्र भस्म वगैरह सब यूज है, तो डेफिनेटली इट शुड बी यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरवाइजेशन। और सद्योव्रण मतलब कहाँ से भी लगी है और बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके पत्र का रस उस पर डाल देना चाहिए, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। और मतलब शस्त्रघात, और मतलब जैसे मैंने अभी बताया सद्यव्रण है या फिर शस्त्रघात हो गया है, तो इसका स्वरस उस पर डाल देना चाहिए। बहुत सारा वजाइनल ब्लीडिंग है, उसमें भी अपामार्ग बहुत अच्छा काम करता है। सुख प्रसव में भी मतलब इजी डिलीवरी होने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। गर्भधारण के लिए भी अपामार्ग का यूज बताया गया है, और मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। एंड योनिशूल में भी, सर्प विष में भी, और अगेन मूत्र पृच्छ जिसमें डिफिकल्टी इन पासिंग द यूरिन, ये सब में भी इसका यूज है। बाद में स्किन डिसीजेस में इसका यूज बताया गया है। और विसुचिका मतलब पेट में दर्द हो के मोशन होना, उसमें भी अपामार्ग का बहुत अच्छा यूज बताया है। कर्ण रोग में मैंने ऑलरेडी बताया, बट बाधिर्य में भी इसका क्षार और कल्क करके यूज करने के लिए बोला है, तो मतलब जहाँ पे डिफनेस है वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आजकल काफी लोग इससे जूझते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अपामार्ग एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, निद्रानाश, कि रात में नींद नहीं आना, इसमें भी अपामार्ग का बहुत अच्छा यूज है। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, बिकॉज आई यूज इट इन माई प्रैक्टिस, कि उसका जो ये है क्वाथ है वो शीघ्र निद्राकर है अपामार्ग का क्वाथ, तो अपामार्ग का क्वाथ आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में रसरत्न समुच्चय, ये जो ग्रंथ है उसमें कामला मतलब जॉइंटिस में इसका उपयोग बताया गया है, बट डेफिनेटली अपामार्ग का क्षार का बहुत अच्छा यूज है। सो अपामार्ग क्षार आई यूज ड्यूरिंग कोविड डेज, प्लस कर्ण रोग में, नेत्र रोग में अंडर मेडिकल सुपरवाइजेशन। एंड थर्ड, आप निद्रानाश में भी इसका यूज कर सकते हो। अपामार्ग अपने पंदिल के आजू बाजू में बहुत इजीली अवेलेबल है। सो आई थिंक सो मैंने आज 3 वनस्पति के बारे में आपको बताया गया है। मैं आगे कोशिश करूंगी कि जो 21 पत्र हम यूज करते हैं वो सारे के सारे के बारे में आयुर्वेदा में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूं। सो अभी के लिए इतना ही। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भगवान गणेश जी की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। और अगर आपको ये जो मैंने अभी ये वीडियो बनाया है, जनरली मैं लाइव करती हूँ आयुर्वेदा का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बट अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे और वीडियोस मैं बनाऊँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जोशी पंचकर्मा क्लिनिक के नाम से, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ और suggestion है, so it's most welcome. So I have tried with 3 the plants, medicinal plants, और उसका आप कैसे यूज कर सकते हो। और ये हमारा साइंस है, इसको हम खुद
हमको ही प्रमोट करना पड़ेगा इन अ साइंटिफिक वे. लोग, मुझे वही बोलना है, डोंट ट्रस्ट ऑन एनी व्हाट्सएप मैसेजेस. अपने आप पे ट्रायल एंड एरर का प्रयोग मत करिए. प्रॉपर साइंटिफिक ऑथेंटिक आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए. हम 10 साल तक पढ़ाई करते हैं, तब ये इतनी बेसिक नॉलेज हमें आती है कि हम वनस्पति को पहचान सके, उसका यूज कर सके. तो अभी मैंने 3 वनस्पति बताई है. होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा. अगर ऐसे ही आपको वीडियो और कुछ आपके सजेशन रहे जिसपे मैं जो भी मेरा नॉलेज है वो शेयर करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हो. So that's all for now. Ganpati Bappa Moria, Mangal Murti Moria. So that's all for now from Joshi Panchakarma Clinic, and namaste to everyone from Dr. Jyoti Joshi. Thank you.